15ਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਲੇਖਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਵਕਤਵ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਲੇਖਣੀ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਵਕਤਵ ਸਿਰਫ ਵਕਤਵ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਇਹ ਰੂਪਰੇਖਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਦਨੁਮਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਮੀਰ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵਿਚਾਰਕ ਤਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪਛੜਾਪਨ ਹੈ। ਗੋਲਕ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਢ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲ ਇਹ ਕੰਮ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਈਸਾਈ ਜਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ 200 ਮੀਲ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੇ ਭਰਮਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹਨ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀਆਂ। 95% ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਸਮੇਂ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਤਨਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਫੈਲਾਓ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਚਰਚ ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜੋ ਰੋਮ ਦਾ ਪੌਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਪੌਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੋਪ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਐਸੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਈਸਾਈ ਜਗਤ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਵੈਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਮਸੰਦ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਸਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਦਾਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਨ, ਨਿਰਮੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਿੰਘ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਉਹ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੱਚਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੇਸਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਤਾਦਾਦ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ 5% ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 5% ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੈਸੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਖਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਜਾਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਰੀਤ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੋ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਰੋਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਨੁਮਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫਸਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਟਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਘਿਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੁਝ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਦੂਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ। ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਿਰੋਲ ਮੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਗੀ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਮਾਤਹਿਤ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਲਾਚਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ, ਦੂਜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਉਸਾਰੂ ਰੁਚੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
और ये रोज बरोज वाधदा जा रहा है। अगर वक्त सिर हुणे इस दी रोकथाम ना की गई तो थोड़ा बहुत जो किधरे किधरे गुरमत की रोशनी प्रगट हो रही है इस ते भी ये बदलियां की तरह छा जाणगे, क्योंकि पहले ही कालियां घटावां बन के छाए हुए ने और ये थोड़ी बहुत रोशनी नूं भी मध्यम कर सकते ने। क्रांति की रूपरेखा निरोल धार्मिक होवे, इस दे लई स्वयं धार्मिक होना बड़ा लाजमी है। जप तप करदियां थोड़ी बहुत रब्बी रस की झलक मिले, मन की एकाग्रता होवे, रूहानीयत का आनंद आना आरंभ होवे तां ही इस क्रांति की लहर में शामिल होना चाहिए है। दूसरिਆਂ ਲਈ इस विच आउणा योग नहीं है, नहीं तो फिर जो भ्रिष्टपुणा राजनीतिक दुनिया विच है इत्थे भी पैदा हो जाएगा। अभ्यासी मनुखी अभ्यासी नूं समझ सकता है, नाम रसिक नूं नाम रसिक समझ सकता है। जैसे एक बच्चा जवान नूं नहीं समझ सकता पर जवान तां जवान नूं समझ सकता है, जैसे एक जवान तां बुढ़ेपे नूं नहीं समझ सकता पर एक बुढ़ा तां बुढ़ेपे नूं समझ सकता है। इसी तरह नाम अभ्यासी नूं समझ सकता है। रसिक पुरुष रूहानी बल रखण वाला, मन की एकाग्रता रखण वाला मनुख इस तरह के मनुख नूं समझ सकता है। ऐसे पुरख का प्रथम रूप में संगठन चाहिए है और वाकई इस संगठित हो गए तां क्रांति लाजमी मंजिले मकसूद ते पहुंच जाएगी। बदकिस्मती ये है कि दुष्ट संगठित ने, सज्जन संगठित नहीं। राजनीतिक संगठित ने, नाम रसिक संगठित नहीं। राजनीतिक इस वास्ते संगठित है कि वह अपनी मंजिले मकसूद ते पहुंचण लई उसे तरह की बिरती ते मनुखा का आसरा चाहुंदा है और जिहड़ा आसरा बनदा है वह भी उसे मंजिल का मुतलाशी है। सो संगठित ने ये लोग, लेकिन नाम अभ्यासी नूं नाम रसिक नूं जदों रस मिलना आरंभ हो जाता है तो संगठित नहीं हुंदा, सगों गुमनाम हो जाता है, छुप जाता है और ऐसा होना सुभाविक ही हुंदा है। पर जिथे कौम का सवाल होवे, गुरु नानक ते बगीचे गुरमत का सवाल होवे, उत्थे नाम अभ्यासियों नूं संगठित होना चाहिए है, रसिक पुरुषों नूं संगठित होना चाहिए है ताकि असीं इस क्रांति नूं पाया ये तकमील तक ले जा सकीए। सारे गुरुद्वारे निरोल नाम अभ्यासी चलाउण, इन्हां दा बकायदा जो केंद्रीय स्थान होवे उन्हां दा मुखिया पौप तो भी उच्ची हस्ती रखदा होवे और उस कोल पवित्रता होवे, रब्बी रस दी धारा होवे, निर्वैरता होवे, प्यार दा भरिया होया हिरदा होवे ताकि असीं इन्हां गुरुद्वारियां दे आसरे देश ते विदेश नूं गुरमत दी वगदी इस ज्ञान गंगा विच इशनान करा के पवित्र कर सकीए। नाम दा अमृत रस हर एक दी जिंदगी विच उडेल सकीए, हर एक दा सही ढंग नाल मार्गदर्शन कर सकीए और ये जो एक सुपना है कि सत्ता सत्तवादी दे हत्थ विच होवे ताकि कोई आकी ना होवे, दुखी ना होवे, उसनूं साकार कर सकीए। राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोई, जद कोई खालसा ही नहीं है राज आ भी गया लोकी आकी रहणगे और बेइंसाफियां चलदियां रहणगियां। खालसा खालिस तां ही हो सकता है जो नाम अभ्यासी होवे, जे निर्वैरता दे जज्बिਆਂ ਵਿੱਚ डुबिया होया होवे। भाग 7 खालिस प्रेम तो बिना मनुख खालिस हो ही नहीं सकता। जिस नाल प्रेम होवे उस तो सदा सदके होण नूं जी करदा है। जिस नाल प्रेम होवे मनुख उस नाल वधीकी नहीं कर सकदा, उसनूं धोखा नहीं दे सकदा, उसनूं तां सदा कुछ ना कुछ देण नूं ही जी करदा है। पर जिस नाल नफरत घृणा ते दुश्मनी होवे उसका सब कुछ खो लैण नूं जी करदा है, उसका नाम निशान ही मिट जावे ऐसे उपराले करदा है। जितनी मिकदार दे ए मनुख दे अंदर नफरत घृणा ते दुश्मनी हुंदी है उतना ही उसका शैतानी रूप जागर हुंदा है ते जितना जिस नाल प्रेम हुंदा है उतना उस तल ते भगवान रूप होके प्रगट हुंदा है। भगवान दे मंदिरां दे संचालक शैतान नहीं होने चाहिए, नहीं तां भगवान दे मंदिर शैतान दे ही अखाड़े बन के रह जाणगे। भाग 8 गुरुद्वारियां दी रूपरेखा। पहले इतिहासक स्थान ही गुरुद्वारे बने। सिक्खी दे वाधे स्वरूप नाल लोड़ अनुसार गुरुद्वारियां दी रूपरेखा बनदी गई। देश विच ते कुछ विदेशां विच कई इतिहासक ते गैर इतिहासक गुरुद्वारे सन। सिख धर्म दे बानी गुरु नानक देव जी दा भ्रमण समुचे देश ते विदेश दा रहा है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा जन्म पटना साहिब विच होया पर तामीरी काम आप जी ने पंजाब विच कीते। ज्योति जो समाए महाराष्ट्र दे शहर नादेड़ विच। इस तरह देश दे भिन्न भिन्न प्रांतां विच आप जी दे इतिहासक स्थान हन। 6वें पातशाह ते 9वें पातशाह दे स्थान भी व्यापक पद्धर ते हन। सिख कौम धार्मिक विरासत वालों ढनाढ़ है। इन्हां इतिहासक स्थानां दे आसरे देश विदेश विच सिक्खी दा दायरा फैलाया जा सकदा सी, पर अफसोस
कि जिथे जिथे ये इतिहासक स्थान ਹਨ सिक्खी उत्थे भी नहीं ਵਧਾਈ जा सकी क्योंकि ये स्थान इस तरह की सोचनी ते लगन वाले दे हाथ विच नहीं हन। लोड़ अनुसार जिथे जिथे गुरुद्वारे बनाए गए उन्हां विचों जिस दी कुर्सी खुस गई उसने लोड़ दे ना हुंदियां होयां भी दूसरा गुरुद्वारा खड़ा कर दिता। एक अंदाजे मुताबक 20% अजिहे गुरुद्वारे हैं जो सिर्फ अपनी कुर्सी कायम रखने लिए ही बनाए गए हैं। इस तरह एक गुरुद्वारा दूसरे की विरोधता विच खड़ा हो गया। प्रेम दे मंदिर आपसी विरोध लई वरते जान लग पे। भावें कुछ गुरुद्वारे प्रेमी ते रसिक पुरुषां ने बनाए हैं ताकि आपसी वैर विरोधां तो हट के गुरबाणी दा अमृत रस माणिया जा सके, पर यह सिर्फ नाम मात्र ही हैं। व्यापक पद्धर ते कोई तामीरी काम नहीं हो रहा। हुण तां इनकलाबी नारा ला के सारे इतिहासक ते गैर इतिहासक स्थान रंग रतड़े दूरदृष्ट सामदृष्ट ते प्रचारक सूचियां रखण वालियां दे हथ हो जाने चाहिए ने। जितना उतले रूप विच असीं ये गाउंदे हां कि राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोई, उतना ही असीं उतले अर्थां दी पकड़ करदे हां जद के लोड़ है गहराई विच जाण दी। तो जो प्रेम दी मूर्ति हो गया उसके कृत कर्मां तो किसी नूं चोट नहीं पहुंचदी। पूर्ण प्रेमी सदा निरपक्ष हुंदा है और उसते राही हर पासे अमन चैन शांति का माहौल बनता है। पर यह प्रबंधकी ढांचा जो गुरुद्वारे की शक्ति वरत के सत्ताधारी होना चाहता है, ये तो गुरुद्वारियां विच ही शांति नहीं रख सकिया। कौम दी बनतर दे समय देश जरवाणियां दे हथ सी। मजबूरन होर वसीला ना होने करके असीं गुरुद्वारियां विच राजनीति करते रहे, पर यह राजनीति वो सज्जन करते सन जो स्वयं सत्ता की भुख नहीं रखते सन, जिस करके गुरुद्वारियां विच भगती रस बनिया होया सी। अज दा माहौल तां यह है कि असीं हर तरह की लड़ाई ते खून खराबा गुरुद्वारे ही करते हाँ, जिस नाल अध्यात्मक वातावरण दूषित होया है। जिन्हां ने गुरुद्वारे विच गुरबाणी रस नहीं रहन दिता, वो बाहर संसार विच इसका की विस्तार कर सकणगे। असीं राजनीतिक प्रचार प्रसार लई गुरुद्वारियां तो बाहर स्थान बना सकते हाँ और उन्हां स्थानां दे राहीं राजनीतिक लहर चला सकते हाँ। हुणे वक्त है, अगर ऐसा ना किया गया तो साडे पावन पवित्र स्थान ते तखत आत्मक रस्सियां दी थां झूठे फरेबी राजनीतिक पैदा करनगे और दूरों वेख के गुरुद्वारियां बारे जगत दी रूपरेखा नहीं बनेगी। गुरुद्वारे तां प्रेम दे सागर हन। इस विच ज्ञान ध्यान दा महान अमृत है जिस नाल असीं सारे जगत नूं आत्म रस नाल सरसार कर सकते हाँ। मिथ ये कहंदी है कि दानव ते देवतियां ने खीर सागर दा मंथन कीता तां अमृत दा कुंभ निकलिया, जिस नाल अद्धे तो भी घट वर्ग देवते दी तृप्ति हुई सी। पर गुरु ग्रंथ साहिब जी खुद ही अमृत दे सागर हन। पर अफसोस के प्रबंधकी ढांचा एक चुल्लू भी अमृत नहीं छक सकिया। खुद दिशाहीन होके सारी कौम नूं दिशाहीन किया होया है। संत सिपाही दी थां कौम दा भयानक रूप पेश किया है। इतबार करन दी थां ते अगला डर जांदा है। पै काहू को देत न पै मानत आन, अंग 1427 वाली रूपरेखा तां सुपना ही हो गई है। जिवें मसंदां दे हंकार ने उन्हां दे अंदर गुरु होण दा दावा कीता सी, इवें ही अजोकी प्रबंधकी ढांचा अपने आप नूं उच्चा ते महान समझ के सिख संगत दी होण तो इनकार करदा है ते संगतां नूं सिर्फ तक पहुंचण दा वसीला समझदा है। हुण तां बोल के लिख के ऐसा वातावरण पैदा करना चाहिए है कि असीं नवें नमाज नूं सुशोभित कर सकीए। मैं बोल के और इस लेखनी द्वारा पहल कर दी है। रसिक नाम अभ्यासी ते कौमी दर्द रखने वाले अगे आके इस विचारधारा नूं प्रबल करन विच सहाई होवन। कमजोर सूद दे धागियां नाल तलवार दी धार नूं मोड़िया नहीं जा सकदा। गलत हथ अगर शक्तिशाली हन तां सही हत्थां नूं भी बलवान होना चाहिए है, तां ही गलत हत्थां नूं रोकिया जा सकदा है। भाग 9 पस्ती विच जा रहा कौमी रूप चलदा।